join? Ma'am, Okay, 81. 81, ma'am. Ma'am, 81. 81. Yes, Yes. ma'am. In my processor, it is showing 65. I don't know the reason behind it. Fine. There might be some updation from backside. And it's good strength. 81 students. Meanwhile, some more will join. Okay, let me start sharing the screen so that it will be easy for you people to get the content. Fine. So yesterday we have discussed about, can you remember yesterday's points? What was our discussion? Can you remember? Ma'am, it was the three techniques of evaluation. Yes. So basically, testing we studied, then observation. These are the two Testing, techniques, And and observation, self-reporting. and self-reporting. And self-reporting. self-report. Yes. So there are three major techniques of evaluation. The first one was testing technique. The second one was observation technique, and the third one was the self-reporting. The may I know, out of the three techniques, which one is considered as direct way of getting information from the students? Self-reporting. Self-reporting, ma'am. Self-reporting. Yes, self-reporting is Self-reporting. considered as, Self-reporting. it is a direct technique or a method of collecting information from the students, because they students, they are reporting by themselves, है ना, directly report करते हैं. And in which situations or in for which aspects we need to use self reporting technique? आप self reporting technique को कब use करते हैं? What kind of situations or what kind of different aspects you want to study? Yes. Evaluation of aspects such as interest, attitude, perception, etc. Yes, interest, attitude, perception, Hobby. hobbies. Yes, so such developmental aspects जिसको कि हम observe करते हैं और हम देखते हैं कि उनके बारे में जब हमको information चाहिए होती है, and those information can be directly supplied by the student. So उनको हम self reporting के माध्यम से collect करते हैं. Now what are the two rest techniques? We have testing technique and we have observation technique. Observing. These two techniques, yes, these two techniques are known as indirect way of getting information. Why they are considered as indirect way of getting information? Ma'am, because we evaluate on Hello. basis of the answers and the performance of the students instead of Yes. asking them directly. Yes. Instead, here the student is not directly supplying the information, but the student is performing some task. है ना, तो जो भी टास्क परफॉर्म करता है तो टीचर उसको या तो उसके प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करता है या फिर उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है. एंड डिपेंडिंग अपॉन द परफेक्ट दैट परफॉर्मेंस और वट एवर द प्रोडक्ट इज गिवन बाय द स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ राइटिंग एन आंसर और वट एवर, we evaluate those things. Hello. Hello. And that is the reason we call them as testing and observation as an indirect way of getting information. So fine. So I hope you are clear with yesterday's discussion, and let me let me go for today's part. I think there is some disturbance from backside. किसी student का mic on है तो उसको off कर दीजिए बेटा. आप में से किसी स्टूडेंट का अगर माइक ऑन है तो आप उसको ऑफ कर सकते हैं. So here I am sharing the PPT. Okay, again let us start our presentation by posing a question. What are the different steps of evaluation? अभी तक आपके सभी steps of जो भी सभी evaluation के steps हैं उसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं अभी, है ना? See, we have learned the first step. First step was, what was your first step? Select.
Select. selecting what? Ele- Selecting the Appropriate technique. हाँ, yes, selecting the evaluation technique by considering the educational objective, है ना? जो आपका educational objective है उसको ध्यान में रखते हुए आप evaluation technique को select करते हैं. Now the next point is you are using that particular technique, है ना? And the third point is what you do? What stands for M? Measure. the learning outcomes. Yes, measuring the learning outcomes. And fourth is Compare. comparing Learning the outcome. learning outcomes with the Outcomes with Educational objectives. objective. educational objectives. And the fifth step is Judge. judge. You are judging the whatever comparison you have drawn. Depending upon the comparison, you are giving some judgment. Fine. Okay. Now, from this, the third point which you have stated, or the third step which you have stated, it talks about the measurement. तो changes की बात कर रहे हैं. The specific changes what you are specifying right now, आप जो specific changes बच्चे में देख रहे हैं, whatever instructions you have provided after that, how will you measure those changes? आप उन changes को कैसे measure करेंगे? My question is, by how using do you this measure technique. these learning? Yes. You are By using comparing this. past performance. Compare तो आप बाद में करोगे बेटे. What my question is, आप पहले third step तो perform करोगे ना? Measure. You need to measure the learning outcome. जब learning outcome आपको मिल जाएगा, आप उसको measure कर पाओगे, तभी आप compare करोगे, है ना? So my question is, how will you measure the learning outcomes of the student? Okay, let us come now. Evaluation techniques. इवैल्यूएशन टेक्निक यूज करोगे और इवैल्यूएशन टेक्निक यूज करने से आपको या तो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी बच्चे की या फिर आपको कुछ प्रोडक्ट मिलेगा. एंड जस्ट नाउ समवन टोल्ड दैट, यस, समवन टोल्ड दैट लर्निंग आउटकम्स जो होते हैं दे आर नथिंग बट स्पेसिफिक चेंजेस, है ना? तो स्पेसिफिक चेंजेस हम बोल सकते हैं लर्निंग आउटकम्स आर स्पेसिफिकेशन ऑफ चेंजेस इन द स्टूडेंट्स बिहेवियर. कैन वी से दिस? लर्निंग आउटकम्स क्या है? Just Yes, ma'am. it is the specification of the changes in the students behavior. Now ये जो specific changes हैं, yes, हम इनका measurement कैसे करते हैं? Fine. How do we measure these specific changes? Suppose आपको एक situation में मैं रखती हूँ. Now listen it carefully. Suppose आपको एक आपने स्कूल टाइम में देखा होगा बच्चों ने कि जो दही होती है कर्ड, उसके अंदर हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है उसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. शायद 10th में ये प्रैक्टिकल आता है ना? कि जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उसको आप स्लाइड के ऊपर रखेंगे और आई थिंक मिथिलिन ब्लू आप डालते हैं और उसको आप स्लाइड को जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, है ना? लेकिन उसका स्टेप है. पहली चीज क्या है? आपको सारे इक्विपमेंट्स को इकट्ठा करना है. दूसरा स्टेप क्या है? आपको स्लाइड प्रिपेयर करना है. तीसरा स्टेप क्या है? आपको माइक्रोस्कोप को एडजस्ट करना है. चौथा स्टेप क्या है? आपको वो स्लाइड जो है माइक्रोस्कोप के अंडर उसको रखना है और फिर उसको एडजस्ट करना है ताकि आप बैक्टीरिया को देख पाए. फाइन. एंड फाइनली आपका जो स्पेसिमेन तैयार होता है उसको फिर आप टीचर को दिखाते हो कि मैडम नाउ माय स्लाइड इज प्रिपेयर्ड और मेरा स्पेसिमेन देखने के लिए रेडी है. तो ये 5 स्टेप आपने मेजर बताए. नाउ जब एक टीचर एक स्टूडेंट्स को डेमोन्स्ट्रेट करती है, बताती है, तो उसने 5 स्टेप्स को अच्छे से बच्चों को सिखाया है. नाउ व्हेन इट इज अ टाइम ऑफ इवैल्यूएशन, जब इवैल्यूएशन की बारी आती है तो पहले तो टीचर हो सकता है बच्चों को हम लिखने को भी बोलते हैं. जब प्रैक्टिकल्स एग्जाम होते हैं ना, टीचर आस्क देम टू फर्स्ट राइट द स्टेप्स ऑफ योर एक्सपेरिमेंट. आप अपने एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स लिखिए और फिर उसको परफॉर्म करके दिखाइए. नाउ सपोज फॉर 5 डिफरेंट स्टेप्स, जो भी आपके 5 स्टेप्स है उसमें अगर स्टेप नंबर 1, सपोज देयर इज सम स्टूडेंट राहुल कोई स्टूडेंट है, उसने पहले 3 स्टेप तो सही किए, ठीक है, लेकिन चौथे स्टेप में जाके उसने मिस्टेक की. नाउ टीचर इज एबल टू आइडेंटिफाई कि वो किस लेवल तक उसको समझ में आया, उसका लर्निंग का लेवल क्या है, उसका लेवल ऑफ अटेनमेंट कितना है. सो टीचर उसको क्या कर सकता है? टीचर कैन मेजर, है ना?
जो भी लर्निंग आउटकम्स है उसको टीचर अब मेजर कर सकती है कि 5 स्टेप में से Yes, 3 ma'am. स्टेप इस बच्चे ने सही तरीके से परफॉर्म किया, उसके बाद मिस्टेक की। फाइन, देयर में बी सम अदर स्टूडेंट, सपोज देयर इज मोहिनी इज सम अनदर स्टूडेंट जिसने 4 स्टेप तक सही किया परफॉर्म, 5वें स्टेप में जाके वो एडजस्ट करना है जब उसको स्लाइड, वहां पर उसने गड़बड़ किया। नाउ द टीचर इज नोइंग कि ठीक है इसने 4th स्टेप तक इसने सही किया, 5th स्टेप में इसका कोई मिस्टेक है। नाउ इन दिस वे देयर मे बी अ स्टूडेंट हु हैज परफॉर्म्ड ऑल द 5 स्टेप्स, है ना, पांचों के पांचों स्टेप्स उसने सही किए। देयर मे बी अ स्टूडेंट जिसने पहले ही स्टेप में मिस्टेक की है। सो लर्निंग का जो लेवल है वो आप चेक कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे, आपके जो स्टेप्स हैं या जितना भी अमाउंट ऑफ लर्निंग है उसको आप मेजर कर सकते हैं। सी लर्निंग जो आप बोल रहे हैं उसको, क्योंकि आपने लेवल ऑफ लर्निंग की बात कर रहे हैं एंड यू आर टॉकिंग अबाउट चेंज। तो चेंज किसी भी चीज में होता है, बदलाव। जैसे अगर मान लीजिए हाइट में चेंज है तो आप मेजर कर सकते हैं। अभी बच्चा 4 फुट का है और 2 साल के बाद 4 फुट 3 इंच का है सपोज, तो 3 इंच का उसमें डिफरेंस आया। सो दिस इज अ चेंज, है ना। अभी वॉल्यूम जो है पानी की टैंक, जो वाटर टैंक है, पानी की जो टंकी है उसमें लेवल सपोज 5 फीट है, अभी 1 घंटे के बाद जब पानी टैंकी में भरा तो 5 की जगह 9 फीट हो गया। तो आप उस चेंज को मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली जब हम लर्निंग की बात कर रहे हैं तो आपके जो चेंज इन बिहेवियर है उसको भी आप मेजर कर सकते हैं। डिड यू गेट माई पॉइंट? सो यू कैन मेजर द लर्निंग आउटकम्स। इज दिस क्लियर? क्या आप लर्निंग आउटकम्स को मेजर कर सकते हैं? यस, वी कैन मेजर द लर्निंग आउटकम। और जब कभी भी आप मेजरमेंट की बात करते हैं तो आप उनको कुछ नंबर या कुछ स्कोर स्पेसिफाई करते हैं। कैन यू डू दिस? टीचर यही करते हैं? Yes, Hello? Yes. Yes. While Yes, performing ma'am. the experiment, depending upon the steps which were rightly taken by the student, टीचर उनको स्कोर प्रोवाइड करते हैं। सपोज 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, किसी ने अगर 4 स्टेप सही किए तो उसको 20 मार्क्स दिए, किसी ने 5 के 5 स्टेप ठीक किए तो उसको 25 आउट ऑफ 25 दिए। इट डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस। फाइन। सो यहाँ पे जो एक स्कोर देने की प्रक्रिया है, जब आप किसी प्रोसेस को या किसी प्रोडक्ट को इवेल्युएट करते हो उसके बाद आप एक स्कोर स्पेसिफाई करते हो, है ना, एक नंबर स्पेसिफाई करते हो। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग द नंबर, है ना, इस प्रोसेस को हम मेजरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Measurement. we call this measurement. process as a measurement. You are measuring the learning outcome, है ना। और आप उस मेजरमेंट को कैसे करते हैं? डिपेंडिंग अपॉन कि उसका लेवल उसने कितना अचीव किया है। फाइन। सपोज एक टीचर ने क्लास में पढ़ाते वक्त एक क्लास टेस्ट लिया है, ओके, उसने डिक्टेशन लिया है। बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं। डिक्टेशन में 10 डिफरेंट वर्ड्स को टीचर ने डिक्टेट किया। अब 10 में से एक स्टूडेंट है जिसने 9 वर्ड्स का स्पेलिंग एग्जैक्टली करेक्ट लिखा। सो द स्टूडेंट गॉट 9 मार्क्स आउट ऑफ 10। स्टूडेंट को 9 मार्क मिले 10 में से। नाउ द प्रोसेस ऑफ गिविंग 9 मार्क्स जो उसने मेजर किया, भाई ये 9 लर्निंग आउटकम क्या था आपका, जो उसने स्पेलिंग्स लिख के दी, दिस इज द लर्निंग आउटकम। ओके, उसमें से Yes, 9 ma'am. सही हुई, सो दैट इज द एक्चुअल लर्निंग आउटकम। इज इट ओके? फाइन। और उसने जो एक Yes, सवाल गलत yes, किया ma'am. वो उसकी मिस्टेक है। सो 9 आउट ऑफ 10 जो दिया, एक्सपेक्टेड कितना था? व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड स्कोर? 10. 10 out of 10. 10, हाँ, 10 is the maximum score 10. or the total score. That is the expected learning outcome. लेकिन actual learning outcome कितना रहा बच्चे का? 9. So 9 is the actual learning outcome. Fine. जो कि उसका obtained score है, जो कि नंबर उसको मिला है, ये स्कोर मिला है। So we are actually comparing. अभी कंपेयरिंग के स्टेप पे आए। मेजरमेंट आपको क्लियर है? व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट? मेजरमेंट इज Yes, ma'am. असाइनिंग सम नंबर, और किसको असाइन करते हो? जो भी Yes, लर्निंग आउटकम है उसको आप मापते हो। सो इस प्रोसेस को आप मेजरमेंट बोलते हैं। ओके, नाउ यू आर कंपेयरिंग ऑब्टेन्ड स्कोर, जो कि स्कोर बच्चे को मिला है, किसे? मैक्सिमम स्कोर से या मैक्सिमम मार्क्स से, है ना। किसी क्लास में अगर 100 मार्क्स का पेपर है, एक बच्चे के 83 स्कोर आता है। नाउ यू आर कंपेयरिंग, एक्चुअल स्कोर इज 83 एंड एक्सपेक्टेड स्कोर वाज 100। सो यू आर कंपेयरिंग, आप 100. 83 को 100 से कंपेयर कर रहे हैं। सो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम इज 100, बल्कि एक्चुअल लर्निंग आउटकम इज 83।
सो आई होप ये दो चीजों को आप कंपेयर करते हैं. इज इट ओके इन द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. Okay. Now let us go for the next. Now if I ask you कि मेजरमेंट और टेस्टिंग ये दो शब्द हैं, है ना? जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं कि ठीक है मैं दो शब्द बोलती हूँ, क्या मेजरमेंट और टेस्टिंग एक ही चीज है या दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है? डिफरेंस है. ओके, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, मेजरमेंट और टेस्टिंग के बीच में? Testing is the process when we measure. Okay, testing is a process when we measure. Is the sentence हाँ. correct? मतलब हम जब मेजरिंग की प्रोसेस करनी है तो उसके पहले टेस्टिंग करेंगे. टेस्टिंग विल कम टेस्टिंग फर्स्ट. के प्रोसेस में मेजरमेंट है या मेजरमेंट के प्रोसेस में टेस्टिंग है? ये सोचो आप जो बोल रहे हो, विच वन इज बिगर? मेजरमेंट के प्रोसेस में टेस्टिंग. मेजरमेंट I की think प्रोसेस में testing. टेस्टिंग. अभी दो गुट बन गए यहाँ पे. सम पीपल दे आर सेइंग कि मेजरमेंट के अंदर टेस्टिंग है और कुछ बोल रहे हैं टेस्टिंग के अंदर मेजरमेंट है. टेस्टिंग टेक्निक है. टेस्टिंग क्या है? इवैल्यूएशन टेक्निक है, ध्यान रखिए. ठीक है, टेस्टिंग इज अ प्रोसेस. आपने एक प्रोसेस यूज किया है टेस्टिंग का. ठीक है, देखो इवैल्यूएशन है सबसे पहले. ठीक है, इवैल्यूएशन टेक्निक्स है. उन इवैल्यूएशन टेक्निक्स में जो 3 इवैल्यूएशन टेक्निक्स है उसमें से एक टेक्निक टेस्टिंग है. ठीक है, जब आपने टेस्टिंग टेक्निक को यूज किया उसके बाद आपने वो 5 स्टेप फॉलो किए. टेस्टिंग एक जरिया है, एक टेक्निक है इवैल्यूएशन की, ध्यान रखिए. जबकि मेजरमेंट उसमें एक सिंपल स्टेप है बेटा. समझ में आया? Yes, ma'am. तो Yes. टेस्टिंग टेक्निक के अंदर एक मेजरमेंट स्टेप है. नाउ कैन यू फॉलो दिस स्टेटमेंट? टेस्टिंग इज अ टेक्निक एंड व्हेन यू आर एम्प्लॉइंग दैट, आपका देखो स्टेप नंबर 1 क्या है? सेलेक्टिंग द टेक्निक. तो आपने 3 टेक्निक जो उसमें से पहली टेक्निक आपने टेस्टिंग यूज की, फिर आपने उस सेलेक्ट किया पहली टेक्निक में, दूसरी टेक्निक में आपने उस टेक्निक को यूज किया. ठीक है, तीसरे स्टेप में जब आपने टेस्टिंग टेक्निक आपने जो लगाई है उसमें तीसरे स्टेप में जो आपको आंसर्स मिले उसको आपने मेजर किया. सो डिड यू गेट माय पॉइंट? Yes, सो ma'am. टेस्टिंग टेक्निक को जब आप यूज करते हैं उसके जो प्रोडक्ट मिलते हैं उसको आप मेजर करते हैं बेटा. आपको जो आंसर्स मिलते हैं उसको आप मेजर करते हैं. सो मेजरमेंट इज ओनली अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन, या ऐसा बोल सकते हैं, या मेजरमेंट इज ओनली अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ, अगर आपने टेस्टिंग टेक्निक यूज की है तो टेस्टिंग टेक्निक में आपने उसका एक स्टेप है. क्लियर? हेलो? यस मैम. Yes, ma'am. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. कई बार बच्चे इसमें मिक्स हो जाते हैं, है ना? आप स्टेप देखिए, सपोज जैसे मैंने एग्जांपल अभी अभी लिया कि मैंने ये चेक किया कि बच्चों को स्टेप्स लिखने आते हैं कि नहीं. लैक्टोबैसिलस स्लाइड जो प्रिपेयर करना है उसमें जो बैक्टीरिया चेक करना है आपको देखना है. तो टीचर ने पहले क्या किया? टीचर वांट टू नो कि बच्चे को स्टेप्स आते हैं कि नहीं, सिर्फ इतना. whether the student is able to write the 5 steps of preparing lactobacillus slide or not. ठीक है, तो अभी टीचर ने का काम सिर्फ नॉलेज लेवल चेक करना है. तो टीचर ने उसके लिए क्या किया? बोला कि यू राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग लैक्टोबैसिलस स्लाइड. अभी हर एक बच्चे ने स्टेप्स लिखे, किसी ने 4 स्टेप सही लिखे, किसी ने 2 सही लिखे, किसी ने 5 के 5 सही लिखे. सो टेस्टिंग टेक्निक यूज किया. तो पहला स्टेप क्या था? सेलेक्टिंग दी टेक्निक. सही है. दूसरा स्टेप क्या है? टीचर ने बच्चों को वो जो टेस्ट दिया लिखने के लिए तो उसने उसको एम्प्लॉय किया, यूज किया उस टेक्निक को. अभी बच्चों ने जो आंसर लिख के दे दिया वो टीचर क्या करेगी? तीसरे स्टेप में उसको मेजर करेगी. जितने स्टेप सही लिखे हैं उतने बच्चे को स्कोर देगी. सो दिस इज अ मेजरिंग प्रोसेस. ओके, हेलो? Yes, ma'am. हाँ. Yes, और ma'am. Yes, ma'am. फोर्थ स्टेप में क्या करेगी टीचर? जो जितना भी स्कोर मिला है उसको 4 आउट ऑफ 5 मिला है या 20 आउट ऑफ 25 मिला है या 30 आउट ऑफ 100 मिला है, जो भी स्कोर है
को वो कंपेयर करेगी कि भाई एक्चुअल स्कोर सपोज मैक्सिमम इट वाज 100 और बच्चे को मिला है से 59, तो 59 इज द ऑब्टेन्ड स्कोर दैट रिप्रेजेंट द लर्निंग आउटकम। ओके, जो कि एक्चुअल चेंज है, जो कि आपने चेंज बच्चे के अंदर ऑब्जर्व किया है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड ओके, यहाँ पर जो आपने स्पेसिफिक नंबर असाइन किया, ये एक क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन है। कैन वी से दैट? मेजरमेंट Yes, प्रोसेस ma'am. के अंदर आपने जो नंबर Yes. असाइन किया, इट इज अ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द लर्निंग आउटकम्स, है ना। आपने लर्निंग आउटकम्स का आपने क्वांटिफिकेशन किया, उसको स्कोर असाइन किया, फाइन। सो दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द लर्निंग आउटकम। सो मेजरमेंट टेक्स इवैल्यूएशन मोर एक्यूरेटली। जब आप मेजरमेंट करते हैं लर्निंग आउटकम्स का, तो उस दौरान अगर आप क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन देते हैं तो दैट मेक्स इवैल्यूएशन मोर एक्यूरेट। आपको एकदम से सही पता लगता है कि कितना बच्चे का लर्निंग हुआ है, फाइन। सो दिस इज अनदर पार्ट। नाउ सी देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स व्हिच यू कैन मेजर डायरेक्टली। कुछ एस्पेक्ट, डेवलपमेंटल एस्पेक्ट ऐसे हैं जिसको कि आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बोला सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज के लिए मैंने एक एमसीक्यू का पेपर बनाया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन पेपर बनाया। सपोज किसी स्टूडेंट के 70 मार्क मिलते हैं आउट ऑफ 100, सो यू कैन मेजर इजीली। आप आसानी से मेजर कर पा रहे हैं, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. अब ये प्रैक्टिकल्स है, प्रैक्टिकल्स में आपको स्किल बच्चों की चेक करनी है कि उनको ठीक से इक्विपमेंट्स के साथ डील करना आता है कि नहीं आता है। तो यू कैन इवन यूज, आप ऑब्जर्वेशन टेक्निक यूज करके या टेस्टिंग टेक्निक यूज करके आप देख सकते हैं कि बच्चे ठीक से प्रैक्टिकल परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं। तो यू कैन इजीली मेजर देयर स्किल्स। आप उनकी स्किल्स को मेजर कर सकते हैं। इज इट ओके? आप स्कोर Yes, असाइन ma'am. करते हैं, प्रैक्टिकल्स में भी टीचर Yes, स्कोर ma'am. देते हैं, है ना। हाँ मैम। लेकिन हाँ, ma'am. लेकिन जब हम ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें कुछ एस्पेक्ट है, जैसे कि बच्चे का एटीट्यूड। क्या बच्चे के एटीट्यूड में बदलाव या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस? यस, है ना। बच्चे के एटीट्यूड में चेंज आता है। कभी कभी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति बच्चे का एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव हो जाता है, कभी कभी बहुत नेगेटिव भी हो सकता है। सो देयर यू कैन फाइंड देयर आर सम चेंजेस इन द एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट towards the subject, even towards the teacher also. Yes? Yes or no? Yes, ma'am. ma'am. Okay. Now you may find, yes, you may find कि appreciation level जो है, appreciation मतलब किसी की प्रशंसा करना, है ना, उसमें भी बच्चे के अंदर चेंजेस आता है। नाउ सी, स्टूडेंट्स कितना अप्रिशिएट करते हैं अपने सब्जेक्ट को, नॉट इवन इंटरेस्ट, हाउ मच दे आर प्रेजिंग, है ना। कभी कभी टीम वर्क में काम करना, अगर आपने कुछ मौके दिए हैं बच्चों को टीम वर्क में या ग्रुप प्रोजेक्ट दिए हैं, स्टूडेंट्स ग्रेजुअली स्टार्ट अप्रिशिएटिंग ग्रुप वर्क। बच्चे ग्रुप वर्क में काम करना अप्रिशिएट करते हैं, है ना। आपने बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए बच्चों को कुछ हेल्प किया या उनको टास्क दिया, नाउ स्टूडेंट स्टार्ट अप्रिशिएटिंग डूइंग प्रोजेक्ट्स, है ना। को करिकुलर एक्टिविटीज में आपने बच्चों को पार्टिसिपेशन करने का मौका दिया, नाउ स्टूडेंट स्टार्ट अप्रिशिएटिंग इन टेकिंग पार्ट इन डिफरेंट एक्टिविटीज। तो ये चीजें भी आपकी ऑल राउंड डेवलपमेंट में मेजर की जाती हैं। लेकिन ऐसी सब चीजों को आप कैसे मेजर करेंगे? हाउ यू विल मेजर? जैसे क्लास में बच्चे हैं, आपने देखा आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी को करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेते थे। अभी आपने उनको मोटिवेट किया, आपने उनको थोड़ा अपॉर्चुनिटी भी दिया जहां पर कि वो पार्टिसिपेशन दे। अब स्लोली, पहले जो बच्चा एकदम से को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेता था, slowly they start taking interest in taking part in different, either it may be the sports activities or it may be the other co-curricular activities, जैसे कि ड्राइंग कंपटीशन है या स्लोगन राइटिंग कंपटीशन है। कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स में उन बच्चों ने धीरे धीरे पार्टिसिपेट करना शुरू किया। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस इज देयर इंटरेस्ट इज चेंजिंग, है ना। तो आप उसको कैसे मेजर करेंगे? हाउ यू विल मेजर इट? क्या आपके पास कोई स्कोर है? क्या आप उसको स्कोर से मेजर करेंगे?
we don't usually give scores, मैम है ना, आप उसमें स्कोर्स नहीं लिखते हैं, है ना, बट आप कुछ क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन देते हैं. क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन मींस से यू आर सेइंग द स्टूडेंट हैज इम्प्रूव्ड इन टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज. आप बोलेंगे, बोल सकते हैं. नाउ स्टूडेंट हैज start taking interest in, he has improved in sports activities. आप ऐसा बोल सकते हो, यस मैम है ना. Yes, ma'am. हाँ, सपोज एडजस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है क्लास में, बच्चा शुरू में अगर कोई मान लीजिए एडमिट होता है और ही इज ट्रबलिंग रेस्ट ऑफ देयर फ्रेंड्स इनसाइड द क्लास, है ना, किसी को बेवजह मारता है, झगड़ा करता है, उनकी चीजें फेंक देता है, ऐसा बच्चा है. नाउ टीचर के कुछ इंस्ट्रक्शंस देने से उसके बिहेवियर में चेंज है. नाउ द चाइल्ड इज स्टार्टिंग और द स्टूडेंट इज स्टार्टिंग एडजस्टिंग इन द क्लास. तो उसके बिहेवियर में जो चेंज आया उसको आप स्कोर थोड़ी ना देंगे, उसको आप क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन की मदद से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, है ना, या मेजर करेंगे. तो आप पेरेंट को किसी को बताना है, या प्रिंसिपल को बताना है, या आपके दूसरे क्लास टीचर्स को बताना है, तो हाउ यू विल डिस्क्राइब विद सम क्वालिटेटिव टर्म. नो, नाउ ही इज एडजस्टिंग इन ए बेटर वे, है ना, नाउ ही इज एडजस्टिंग विद देयर फ्रेंड्स, now he is in a better situation now, है ना, he is competing with their friends properly, है ना, he is making a better behavior now. आपने इस टाइप के टर्म्स या वर्ड्स को यूज करके आप उसका इम्प्रूवमेंट आप बताएंगे. और अगर कोई बच्चा और ज्यादा उद्दंड हो गया है या बहुत ज्यादा उसका बिहेवियर खराब हो गया तो भी आप बताएंगे नाउ ही इज इवन मोर डिजास्टर देन द अर्लियर, है ना, पहले की तुलना में और ज्यादा खराब हो गया है. तो ये सब क्या है, क्वालिटेटिव टर्म्स हैं. और हिज बिहेवियर बिकम मोर पुअर, तो ये क्या है, क्वालिटेटिव टर्म्स आपने यूज किए. मे आई क्लियर विद यू? यस मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो ये जो सब आपने टर्म्स यूज किए, ये भी एक तरीके से उसके बिहेवियरल चेंज को मेजर करते हैं. और ज्यादा पुअर होना या इम्प्रूवमेंट होना या बिहेवियर सेटिस्फैक्टरी है ना. तो ये सब जो टर्म्स यूज कर रही है टीचर, द टीचर इज ट्राइंग टू मेजर द चेंज इन द बिहेवियर, राइट. सो इस टाइप के क्वालिटेटिव टर्म्स को जो हम यूज करते हैं फॉर मेजरिंग द चेंज इन द बिहेवियर, और जो चेंज इन द बिहेवियर है दैट इज नथिंग बट द लर्निंग आउटकम्स. यही तो लर्निंग हुआ है बच्चे का, जो भी चेंज बच्चे के अंदर आया है दैट इज नथिंग बट द लर्निंग आउटकम्स. यही हमने बताया ना, हमारे लर्निंग आउटकम का डेफिनेशन यही है, स्पेसिफिकेशन ऑफ चेंजेस इन द चाइल्ड आफ्टर द इंस्ट्रक्शंस. ओके, so whatever is the change you are observing among the students, that is nothing but your learning outcome. तो उसको कई बार हम क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन की मदद से भी एक्सप्रेस करते हैं. सो वी कॉल सच काइंड ऑफ मेजरमेंट. ये जो एक मेजरमेंट था लर्निंग आउटकम्स का, इट इज एक्चुअली ये किस टाइप का, हम उन्हें उसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर पा रहे हैं, है ना. जहां पर हम स्कोर स्पेसिफाई करते हैं दैट इज मेजरेबल लर्निंग आउटकम, उसको हम बोलेंगे मेजरेबल लर्निंग आउटकम. आपका इंटेलिजेंस है, हमको आपका सब्जेक्ट में अचीवमेंट लेवल चेक करना है, तो ये सब क्या हुआ, आपका मेजरेबल लर्निंग आउटकम है. हम स्कोर्स देके उसको मेजर कर सकते हैं. लेकिन कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं जैसे कि एटीट्यूड बताया, परसेप्शन बताया, एडजस्टमेंट बताया मैंने, इंटरेस्ट बताया, ये सब कैसे लर्निंग आउटकम्स है, नॉन मेजरेबल. ठीक है, डायरेक्टली इसको हम नंबर्स की मदद से हम मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए हम उनको नॉन मेजरेबल लर्निंग आउटकम्स बोलते हैं. यस सर. Just wait for a minute. Dear students, now the Yes, sir. explanation which has been given by Dr. Sonia to you, on the basis of that, now you tell us those learning outcomes for which qualitative description is available or is possible. Could you all get my question? She has given several examples. sir. Now you think of some indigenous examples wherein you think that for this the learning outcome can be described in qualitative terms, and the other where learning outcomes is described in quantitative. Sir, there are two parts. First is academic Maria, part in which they give
marks and percentage. Numbering are there in subjects like science, maths, English, economics. Second part is there in drawing, PT, honesty, discipline. In that, qualitative grades are given like A, B, C, D. So these Fine. both are different. Mariam, that is fine. Now somebody else. There are around 90 students in this class. So please give some examples like this. Students, please speak it out. Sir is asking a very nice question. Sir, if a child is showing anger due to some reasons, then this can be described in qualitative terms. Chalo, very good. Did you all understand? जैसे कि गुस्सा, कितना गुस्सा किया, तो आप बोलोगे कि 8 मार्क का गुस्सा किया या 80% गुस्सा किया, है ना? We will say that हाँ, it is कि गुस्सा, the extent of anger was more, or it was less, or it was average. Very good example. Sure. Any other example? Please, one at a time. Who is saying? Aditi? Sorry. Beta, can we do one thing? Please tell your name and then you give answer. Hello. Yes. Is it Aditi? Sir, the co-curricular activities which are conducted in the school are measured in terms of qualitative Very good. terms. Give example of 1 or 2 co-curricular activity. Sir, as in sir, clay modeling or some craft Fine. Either activities. it could be clay modeling, craft, paper cutting, it could be dancing, it could be singing, it could be elocution competition. Fine. Shall anybody else? Please tell your name. If possible, also put on your camera. And this is a request to all of you. Please put on your camera. Camera चालू रखो तो. अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी का इश्यू नहीं है तो प्लीज पुट ऑन योर कैमरा. सब लोग कैमरा चालू रखो. गुड. आई कैन सी नाउ 3 फेसेस. सिमिलरली ऑल ऑफ यू कैमरा चालू रखो. चलो सोनिया, यू कैन कंटिन्यू नाउ. आई थिंक these are Okay, enough sir. examples. For rest of the Yes, students, sir. please keep thinking. Yes, sir. Yes. Okay. Okay, thank you, sir. Now, see, in the similar way, one more example I have given here. Like some student has improved his or her handwriting, है ना? Student को एक मैडम ने कुछ instructions दिए, and that is on that basis of that instruction, student has improved his or her handwriting. Now, the changes, whatever is being found in the handwriting of the student, how will you evaluate them? आप उसको कैसे measure करेंगे? You may say that the student has improved a lot in his handwriting. Now the handwriting is good. Now, or it may be the student needs some more. You can say student needs some more measures to improve his or her handwriting. So this kind of judgment which you are putting now, or this kind of the qualitative description which you are putting, this comes under non-measurable learning outcomes. The reason is we cannot specify the learning outcome in terms of numbers or scores. This is a reason. So I hope this discussion helps you to understand the meaning of measurable and non-measurable learning outcomes. Now the next slide talks about, it will take few seconds to you. Okay, I hope now it is visible to you. See, evaluation, if you see, it is broadly taken into consideration 2 kinds of descriptions. One is quantitative description, another is qualitative description. Sonia, And Sonia, yes, sir. Ji, please sir. take. Now students, Ji. you all can see this slide. Fine.
We all know now what is quantitative description, what is qualitative description. Plus, madam has added one thing, value judgment. So what do you mean by this value judgment? Please think, what do you mean by value judgment? Otherwise, say, let us take that simple example of quantitative description. Madam was giving an example of spelling writing, and she said that somebody has got 9 marks. So 9 is the actual change in behavior, and expected change in behavior was 10. So then she has written 9 upon 10. Fine. After that, what do you mean by value judgment? So value judgment means like if सर मतलब 9 आए तो very good हमने लिखा, is that a value judgment? Good. कौन बताया? Kruti. श्रुति, that is absolutely right. मान लो कि 9 upon 10 आया, तो 9 upon 10 के बाद as a teacher you are writing very good. So this very good is you are judging. Fine. So that is value judgment. Chalo. Any other example? Or Sonia, you can continue now. Yes. Okay, See, sir. they Okay. all know and they have given this answer. They know what Yes, is the sir. meaning of value judgment. Value judgment. Yes, sir. Yeah. Fine. So similarly, in different examples, when we go for the 5th step of evaluation, you can see that it is judge. Fine. The 5th step talks about giving the judgment. Now, judgment किसके basis पर होता है? We give judgment on the basis of comparison, because you are comparing the actual or the obtained scores with the expected scores, है ना? अगर किसी स्टूडेंट के 80 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 100, सो वी आर नाउ कंपेयरिंग फर्स्ट. सो कंपैरिजन हमको बताता है कि व्हाट काइंड ऑफ जजमेंट इट इज. इफ द परफॉर्मेंस इज गुड, वी गिव say excellent, we give good, we write sometimes students को टीचर स्टार्स भी देते हैं. सो दीज आर ऑल जजमेंट्स, है ना? आप लिखते हैं जैसे किसी स्टूडेंट को एक टीचर ने लिखा द स्टूडेंट हैज स्कोर्ड 45 मार्क्स आउट ऑफ 100. टीचर हैज रिटन यू कैन डू बेटर. टीचर ने एक रिमार्क दिया यू कैन डू बेटर. व्हाट डज इट मीन? Now this is a judgment to the scores. Now teacher tries to improve or teachers try to motivate the student at that time, you can do even better than this. So this is a judgment coming to the performance. Okay, if some student has suppose that student is gaining 30 marks out of 100. Now teacher has written need hard work. Now this is another judgment. यहाँ पर बच्चे को टीचर ने लिखा है कि यू नीड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू इम्प्रूव. सो दिस इज अनदर जजमेंट. सो जजमेंट अलग अलग टाइप की हो सकती है. इट मे बी समटाइम यू फाइंड व्हेन द स्टूडेंट दे आर परफॉर्मिंग वेरी गुड, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तभी भी हम उसको रिमार्क्स के साथ जज करते हैं, बताते हैं, बिकॉज जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सपोज इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, 50 बच्चे हैं आपकी क्लास में और 100 मार्क का पेपर है, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे गॉट मोर देन 70 मार्क्स. आपकी क्लास में ज्यादातर बच्चों के मार्क्स 70 से अबव हैं. उस केस में अगर किसी बच्चे के मार्क्स 65 हैं, what you will write at that point? उस सिचुएशन में आप क्या लिखेंगे? आपकी जजमेंट क्या होनी चाहिए? You can need a little bit of improvement or hard work. हाँ, इट मीन्स दैट हो सकता है क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था, इसीलिए ज्यादातर बच्चों के मार्क्स 70 से अबव हैं, है ना? और उस स्टेट में अगर किसी बच्चे के मार्क्स 65 हैं, तो आप वहां पर किस टाइप की जजमेंट लिख सकते हैं? यू कैन डू इवन बेटर देन दिस, है ना? वहां पे हार्डवर्क की जरूरत नहीं है, बट यू कैन इम्प्रूव मोर, है ना? आप ऐसा लिख सकते हैं. वहां पर ये एक बहुत सेटिस्फैक्टरी स्कोर नहीं माना जाएगा. जबकि अगर किसी स्टूडेंट का स्कोर 92 आता है, उसी सिचुएशन में यू कैन से यू कैन राइट वेरी गुड और कीप इट अप. इस टाइप का आप एक जजमेंट दे सकते हैं. और सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, है ना? डिड यू गेट माई पॉइंट? सो जो आपका स्कोर है, जब आप उसको एक्चुअल स्कोर से कंपेयर करते हैं या जब मैक्सिमम स्कोर से कंपेयर करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, यू आर गिविंग सम जजमेंट, एंड जजमेंट डिस्क्राइब्स अ लॉट अबाउट द स्टूडेंट.
क्योंकि जजमेंट कई बार हम बाकी स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए भी देते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया. Fine. So sometimes you may find judgment is positive also. Sometimes it is trying to motivate the student, है ना. आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड है कि जजमेंट किस टाइप की. आपको जजमेंट से इमीडिएटली समझ में आएगा कि ओवरऑल परफॉर्मेंस बच्चे की कैसी है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में. सो दिस इज द रीजन. Now here we have broadly classified the two kinds of description which we are found in the evaluation process. It may be the quantitative description or it may be the qualitative description. चाहे वो quantitative description हो या qualitative description हो, दोनों ही टाइप के description के साथ आप judgment या value judgment देंगे. Now depending upon the value judgment in both the cases, आप देखेंगे because some developmental aspects are measurable and some developmental aspects are नॉन मेजरेबल, है ना. कुछ डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स को आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं. यू नीड टू डिस्क्राइब देम इन टर्म्स ऑफ आइदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. सो आई होप दिस स्लाइड विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड the evaluation process. So we have gone through right from the first step till the fifth step of evaluation. So आप में से कोई भी एक स्टूडेंट with a small example can you go through कि फर्स्ट स्टेप से लेके फिफ्थ स्टेप्स तक इवैल्यूएशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करेगा. बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू विद वेरी गुड ड्रिल जिसमें हमने हर एक स्टेप पे एम्फेसाइज किया है. एनी वन ऑफ यू जस्ट टेक एन इनिशिएटिव कि आप एक एग्जांपल लें जिसमें कि आपको पता लगे कि आपने कौन सा टेक्निक सेलेक्ट किया है, कब यूज किया है, कब मेजर किया है, कब कंपेयर किया है और कब आपने उसको वैल्यू जजमेंट लिया. यू जस्ट टेक वन एग्जांपल. आई वांट फ्रॉम यू पीपल नाउ. Ma'am, I had one doubt. Yes. Yes. Ma'am, for example, qualitative description में हम already बोल रहे हैं कि we are not giving scores, but हम लिख रहे हैं कि performance has been improved या फिर performance has been degraded. तो उस केस में मैम फिर value judgment में हम क्या लिखेंगे? See, you are measuring first. आपने जो परफॉर्मेंस है उसको आपने क्वांटिफाई तो नहीं किया है, बट आपका जो डिस्क्रिप्शन है ना, कि इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, वेदर द परफॉर्मेंस इज सेटिस्फैक्टरी और नॉट. लेकिन आप जो जजमेंट के लिए जो आप वर्ड्स यूज कर रहे हैं ना, दैट इज ट्रीटेड एज अ जजमेंट इटसेल्फ, है ना. आपके क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन ही एक्चुअली एक तरीके से जजमेंट भी दे रही है यहाँ पर. यू आर वेरी राइटली सेड. क्योंकि हम उसमें स्कोर नहीं प्रोवाइड करते. क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ने स्कोर दिया तो आपने उसको क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन कहा. लेकिन जब आप क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं उसमें जो जजमेंट है, आप जो उसमें जजमेंट के लिए जो वर्ड्स यूज करते हैं, एक्चुअली सेम वर्ड्स यू आर यूजिंग फॉर क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन. आप कोई भी एग्जांपल देखिए, जैसे आपका ड्राइंग का अगर कोई कंपटीशन है उसमें आपने पोजीशंस दिए हैं, है ना, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तो यू आर नॉट पुटिंग द स्कोर्स, बट वो क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन वहां पर ये दिस इज अ बेस्ट पिक्चर, दिस इज अ बेटर पिक्चर एंड दिस इज इवन लेसर देन दिस. तो यहाँ पे आपने क्वालिटी बेसिस पर आपने उसको अलग अलग लेवल्स दिए हैं. और जो आप जजमेंट दे रहे हैं, जजमेंट का मीनिंग आई थिंक इट इज क्लियर. आप गुड, बेटर या कीप इट अप, जो आप वर्ड्स यूज कर रहे हैं, दैट डिस्क्राइब द वैल्यू जजमेंट. मे आई क्लियर टू दिस पार्ट? यस मैम. ठीक है. नॉन मेजरेबल का मीनिंग आई थिंक ये भी आपको क्लियर होगा, बिकॉज वी कैन नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इसलिए उसको हम नॉन मेजरेबल बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो आई वांट टू ऐड. फाइन. So may I ask to my students, could you take any simple example which can elaborate all the 5 steps of evaluation? कोई भी एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए जिसमें मुझे आप क्लियर कर पाए कि हमने कहाँ कौन सा स्टेप को यूज किया है या एम्प्लॉय किया है. थोड़ा सोनिया प्लीज वेट. Yes sir. Kruti, another response to your question is, see, there is a thin line difference, very thin line difference between measurement and value judgment, particularly in the case of qualitative aspect of personality. Okay. Now, for instance, as Madam was saying,
You say students were asked to do some clay work, or paper cutting, yeah, anything. Now, on that drawing or clay work, as a teacher, you are saying, say, average, or good, or excellent. Okay? Sometimes teachers also give star, 1 star, 2 star, 3 stars. So this is very popular with primary school children. See that either 1 or 2 or 3 star, that way is a quantitative description, but here the quality of that particular aspect is described in terms of star. So that will become the measurement. And then later on you can say that performance was extremely good, okay, or you could have still done better, or this aspect could have been improved. In the drawing, the color combination could have been different. In the clay work, the proportion of the body parts could have been little more elaborated or could have been little more different. So something like this is then ultimately the judgment. But please try to understand there is a very thin line difference. Okay? Yes, sir. And in quantitative, there is absolutely no issue. Now, I will slightly modify the question asked by Dr. Sonia. First of all, let us all collectively, loudly tell all the 5 steps of process of evaluation. All of you at a time, you can tell me the first step of process of evaluation. Unmute करो अपने आप को, सब लोग पहले unmute करो. All of you please unmute. Unmute कर दो, सब लोग. Please unmute. Koushika Patel, unmute करो. Okay. Hardeep अभी तुम्हारा unmute नहीं हुआ. Somebody is joined from Facebook also. Unmute करो. चलो अभी all at a time. Tell me the first step of process of evaluation. Selection, but it is complete statement. Complete. Say one by one. First step is, now state first step. Selecting. Selecting. State in a proper way. First step is selecting what? Evaluation techniques. Like considering educational अभी objectives. मेरा एक्सपेरिमेंट थोड़ा फेल हो गया. एक साथ में नहीं बोलेंगे, अभी मैं जिसको बोलूंगा वही जवाब. Fine? Shruti, See, there is lot of interference sir. of sound. बाकी There सब is लोग lot पहले of अपने आप को म्यूट करो. मैंने सबको बोला एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल लग रहा. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. अपने आप को म्यूट कर दो. Now only Vruti. Vruti, tell me the first step of process of evaluation. Sir, the first step is to select the evaluation technique by considering the educational objectives. Fine, that is okay. That is very good. Okay. Second step. Somebody has joined from Subedar 09. Subedar 09. Sir, second, sir, this is Shobita. Okay. Yes, sir. The second step is using that particular technique. Okay, fine. Nilima, what is the third step? Yashi, third step. Yes, sir. Please. Third bolo. step is measuring the learning outcomes. Third step is? Measuring the learning outcomes. Okay, good. Fourth step. Now not Kruti, but there is somebody, Vruti Patni. Yes, sir. Comparing the obtained learning outcomes to the expected learning outcomes. Okay, fine. Comparing the learning outcome with educational objectives. Even if you can tell this way also. Comparing the learning outcomes with educational objectives. And fifth step. Hemlata Parmar. Hemlata. Yes, sir. The next is judgment.
हेलो। हाँ प्लीज प्लीज, यू आर ऑडिबल, कंटिन्यू। हाँ, द नेक्स्ट स्टेप इज जज, जज करना, मतलब जज करना, लेकिन पूरा सेंटेंस बोलो, क्या जज करोगे? आउटकम्स, ठीक है, थोड़ा इनकम्प्लीट कहा। इवैल्यूएशन। धर्मिष्ठा पटेल, धर्मिष्ठा सुन सकती हो मुझे? बोलो, अनम्यूट करो Yes, एंड sir. बोलो। हाँ बोलो अभी। व्हाट इज द फिफ्थ स्टेप? कंप्लीट स्टेटमेंट ऐसा है, जजिंग वेदर द अचीवमेंट इज सेटिस्फैक्टरी और नॉट, है ना ऐसा? तो फर्स्ट स्टेप इज selecting appropriate evaluation technique in consideration with educational objectives. Okay. अब म्यूट कर दो, आप सब लोग म्यूट कर दो। श्रुति मैकवान, श्रुति म्यूट करो। हाँ, फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ appropriate evaluation technique in consideration with educational objectives. So here we come across two terminology. One is evaluation technique and second is educational objectives. Okay. Then second is use the selected technique. Third is measure the learning outcome. So एक नया terminology आया, learning outcome. Then fourth is compare learning outcome with educational objectives. And fifth is judge whether the achievement is satisfactory or not. अब मुझे डेफिनेशन बता दो, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग आउटकम्स एंड इवैल्यूएशन टेक्निक. These are the three new terminology. Fine. And all three have very specific definition. एक भी शब्द उसमें आगे पीछे नहीं चलेगा. हेमलता, क्लास पत्या પછી વાંચવાનું, હમણાં નહીં. चलो बोलो. What is the definition of educational objectives? ये तो ये हो गया कि पूरा महाभारत खत्म हो गया और रामायण खत्म हो गया. वो सीता का हरण हुआ था, हरण में से सीता कब हुई? तो उसके जैसी बात हुई है. तो सब कुछ खत्म किया रहा है. फंडामेंटल कंसेप्ट्स. One is educational objective, evaluation techniques, learning outcomes. Sir, educational objectives. Educational Kruti, बोलो. Yes, sir. Sir, educational objectives means जो specific objectives and that are like performed through various activities in order to attain our purpose of education. See, Kruti, what you are trying to do is you are trying to describe that. I have asked what is the definition, and definition has to be definite. Yasi? So, educational objectives are specification of desirable changes and which should be brought in a student's knowledge. चलो, well said. कुछ थोड़ा correction की जरूरत है. अभी I think today time हो गया ना, भूमिका, सोनिया? Yes, sir. Yes, Time sir. हो गया. Yes, sir. But if you want to continue, sir, इसके बाद किसी का लेक्चर नहीं है इन लोगों को. नहीं, but अभी मुझे भी थोड़ा काम है, नहीं तो मैं ठीक है, continue. ठीक है. So, we will continue for some time. Tell me the educational objectives. Yasi has made some attempt, but still it has to be very specific. Educational objectives are okay, evaluation technique. Evaluation technique. Hello, Sir, may I? Yes, please. The technique which are used to determine the learning outcomes, it is called evaluation technique. Okay. I think there would have been और better definition. Normally हम क्या करेंगे, जो term को define करोगे ना, we normally do not use that word. जैसे technique use for नहीं होगा. Evaluation technique is a definite way or procedure for obtaining information from the students. अभी सेंटेंस को ध्यान से सुनो. मैंने ऐसा बोला,
evaluation technique is a definite way or procedure for obtaining information from the students for the purpose of evaluation. A definition होता है and फिर इसको समझने की कोशिश करो. Maybe in next class we will discuss. Educational objectives are the specification of desirable changes that we wish to bring about in students' behavior. And then behavior is defined as change in their knowledge, attitude, aptitude, interest, so on. है कि नहीं ऐसा? Learning outcomes are actual changes that have taken place in students' behavior. They are learning outcomes. Okay. तीन से what I was simply trying to say is, this course is a very particular course. एक शब्द भी आगे पीछे कर दिया ना, मतलब बदल जाएगा. So you have to be very careful in remembering of these concepts. Maybe now next time we will, I'll spend some more time with you. But today मेरा एक observation है. See the way some of you have dressed yourself. ऑनलाइन टीचिंग है, घर से बैठ के करना है. दैट डज नॉट मीन कि कोई भी ड्रेस पहन के आप बैठ जाओगे. प्लीज रिमेंबर, ऑनलाइन में भी आपका ये पूरा रिकॉर्डिंग होता है. एंड सोनिया एंड भूमिका, प्लीज एंश्योर अगर ये लोग अपना वीडियो चालू नहीं रखते हैं तो डू नॉट अलाउ देम, जस्ट पुश देम आउट ऑफ द क्लास. वीडियो चालू रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है. फाइन. अगर इनका वीडियो चालू नहीं है तो उनको निकाल दो यहाँ से सिस्टम से. दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड. तो आप लोग you will wear proper dress. बाल भी अच्छी तरह से बाल को बना के बैठोगे. ये कोई ऐसा नहीं कि हम कोई भी शादी वाले फंक्शन या कहीं पे भी गए. दिस इज अ फॉर्मल क्लास. ओके. एज फार एज पॉसिबल अवॉइड यूजिंग टी-शर्ट्स, both boys and girls. No t-shirts as far as possible. Wear proper dress. Okay, is that clear to all of you? Yes, sir. And sit properly. This is a classroom only, but this is an extended classroom. You are sitting at your home. Fine. And अगर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी का इश्यू है तो आप वीडियो चालू नहीं करोगे, बट मैडम को इन्फॉर्म करोगे कि मैडम मैंने वीडियो चालू करने की कोशिश की, बट आई डू नॉट हैव प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी and hence I am not able to join with video on. Okay. Otherwise, all those who do not have any problem with internet connectivity, please keep your video on. Is that clear? भूमिका मैडम, भूमिका सुनती है ना ये? Yes sir, yes sir, I'm listening. तो ये इंश्योर करना. अभी देखो नाउ, जब मैंने इतना बोला तो आई कैन सी 4, 18, 19 लोगों का, नहीं 1, 2, 3, 4, हाँ 19 लोगों का वीडियो चालू है. Is that clear? I don't know. At a time I can see only 19. There may be some more also. But yes, please remember, मैंने जो दो चीजें बताई वो कि if you have proper internet connectivity, keep your video on and wear proper dress. बाल को भी अच्छी तरह से कंघी बना के पहनो. And then attend class very seriously. You should have notebook and pen with you. Madam जो बोले, note down all those points. Okay. Fine. Thank you very much. I will now leave. If you want, you can continue or we can meet day after tomorrow. किसी को कोई प्रश्न पूछना है? आज जो पूरा मैडम ने पढ़ाया उसके ऊपर any one of you, do you have any question? Yasi, you have raised your hand. Yasi has raised. हाँ, Yasi, please. No, sir, I don't have any question. Okay, now you don't have. Fine. Anybody else? कोई नहीं है ना, तो इस तरीके से अपना वीडियो चालू रखो. क्लास में ऐसे ही बैठोगे जैसे मैडम, क्योंकि देखो पढ़ाते वक्त मुझे भी, if I do not see anybody's face, I do not like to teach. अब मान लो कि आप मेरे सामने नहीं हो, बट यहाँ पे जैसे अभी इतने लोगों का वीडियो चालू है तो मुझे ऐसा लगता है एज इफ I am interacting with all of you. मेरा आई कांटेक्ट है, मैं आंखों से देख सकता हूँ कि विशाल जादव क्या करता है, वैभवी त्रिवेदी क्या करती है, सोनिया राजपूत क्या करता है, कि यासी क्या करती है. आई कैन सी दिस वे एंड दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. पढ़ाने के वक्त आपको भी अभी कुछ दिनों के बाद हम बताएंगे कि आपको जब किसी को पढ़ाना है तो सामने वाले का चेहरा दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. चेहरा नहीं दिखता है तो वही आप सामने ब्लैंक स्क्रीन के सामने बैठ के यू आर स्पीकिंग समथिंग. ओके. तो इसीलिए को प्लीज रिमेंबर,
कि अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी कम है आपकी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बैंडविड्थ अगर एडुकेट नहीं है, आप वीडियो चालू करोगे तो ऑडियो भी डिस्टर्ब हो जाएगा. So in that case, but please inform मैडम, आपको चैट बॉक्स में जाके मैडम को इन्फॉर्म कर देना कि मुझे ये इश्यू है, that is how I am not able to show my face. Is that clear? Clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Promise? Yes, sir. Okay, fine. Promise only एक लड़की ने हाँ बोला. Promise. Yes, promise. Okay. Yes, sir. Yes. Fine, great. Thank you very much. Now I will leave. Okay, sir. Thank you so much, sir. Now we are closing. Hello. Now we can end. Yes, we are closing this session right now, and we will meet on day after tomorrow. Fine. Right. Thank you, all of you. Okay. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.